Hello guys, again welcome in Nitya Genius classes. Today we will study about sexual reproduction in animals. In the previous video we had been study the asexual reproduction in flowering plants. And before the previous video we will study the asexual reproduction in an organism or asexual method in this video, we will finally discuss about how an organism reproduces and why a single parent does not able to reproduce the new organism, and why and what is the barrier method and what is the chemical method that prevents the pregnancy in women. So let's start. The first things is that what is gamete and what is male gamete and what is female gamete. In the previous video, we will confuse that what is sex cell. In this video, that topic is clear from the discussion below. Now let's start the discussion. In the what is gamete? In animal having male sex cells called sperm. यानी मेल सेक्स सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्म. आप लोग भी देखिए स्पर्म कहाँ है. और देखिए नेक्स्ट in its body is called male. An animal having female sex cells called ova or egg in its body is called female. An animal having a male sex cell called sperm in its body is called male, and the female sex cell is called ovum in its body is called female. And now the next topic is that what is gamete? What is gamete? What is gamete? The sex cells involved in sexual reproduction are called gametes. The male gametes in animal is called sperm and the female gamete in animal is called ovum. Now what is the figure of ovum and how it is long and what is the diameter of egg and which things is that middle piece and tail and head. Let's discuss below. फ्रेंड्स, ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये स्पर्म सेल है और ये स्पर्म सेल और ये एग सेल. स्पर्म सेल का कितना होता है? स्पर्म सेल लॉन्ग 0.05 mm लॉन्ग और इसके पास एक हेड होता है और मिडिल पीस और एक टेल होता है. स्पर्म सिंगल सेल का होता है और इसके पास न्यूक्लियस होता है और देखिए ये एक साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन भी होता है. तो क्वेश्चन आता है इसके पास एक हेड है और एक मिडिल पीस भी है. ठीक है, इन दोनों का इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट क्योंकि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि जो हेड है उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, ये जो रेड कलर दिख रहा है न्यूक्लियस का, इसके अंदर क्रोमोजोम के अंदर जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा, कौन सा बॉडी पार्ट्स बनाना है. क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का, ये है क्वेश्चन कि वाई स्पर्म हैज अ लॉन्ग टेल. स्पर्म के पास क्यों एक लंबी पूंछ होती है? बिकॉज इट इज मोटाइल. Sperm has a long tail so that it can move. इसके पास लॉन्ग टेल इसलिए होती है क्योंकि इसे मूव करना होता है और एग सिंपली वो कुछ नहीं करता. अब एग के बारे में पढ़ेंगे. एग के पास क्या क्या होता है? एग के पास सेम थिंग्स होता है जो स्पर्म के पास होता है. एग का डायमीटर जानते हैं 0.15 mm में होता है इसका डायमीटर. एग का एक सिंगल सेल का होता है ये और इसके पास भी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन होता है. अब बात करेंगे फ्यूजन. द फ्यूजन ऑफ गैमेट गिव्स राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट. आफ्टर जाइगोट वी विल गेट embryo, and after embryo we will get fetus, and after fetus we will get new baby born. So let's start one by one. Friends, this is the figure of sperm and this is the figure of egg, and third figure is the fusion of egg and sperm, and this is the figure of
after few months, the fertilized egg. The fusion of male gamete with a female gamete to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization. The fusion of a sperm with an ovum to form a zygote during sexual reproduction is called fertilization. यानी कि जो फ्यूजन होता है किसमें, मेल विथ एग टू फॉर्म अ zygote ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. So friends, now we will study about how many types of fertilization. First, discuss what is fertilization. The fusion of male gamete with a female gamete to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization. There are main two types of fertilization. First, internal and second, external. The fertilization which occur inside the female body is called internal fertilization. यानी जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन फीमेल के बाहर होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल देखें तो मैमल्स आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल फ्रॉग्स, टोड्स और फिश. जो ये आपको फिगर दिख रहा है फ्रॉग का, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फिगर है. देखिए यहाँ पे एग भी रिलीज किया गया है और स्पर्म और एग दोनों इसी में है. ये जो आपको काला काला दिख रहा है वो एग है और जो वाइट वाइट दिख रहा है वो स्पर्म है. ये एक्सटर्नल है. पहले फीमेल आती है, अपने अंडे को रिलीज करती है, फिर मेल आता है, वह भी अपने स्पर्म रिलीज करता है, फिर फर्टिलाइज होता है, फिर न्यू बेबी ग्रो होता है. देयर आर टू डिफरेंट मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन in nature: natural, internal fertilization and external. So let's start a new topic. The method in which a zygote grows develop into a full organism also vary in different animal. यानी कि हर प्रकार के एनिमल में अलग अलग प्रकार से बदलते रहते हैं, ऑर्गेनिज्म डेवलप होते रहते हैं और अलग अलग प्रकार से जन्म लेते हैं. अब देखेंगे एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या फ़ायदे हैं और क्या एडवांटेज हैं. मच जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन असेक्सुअल. यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेंड्स देखिए, मच जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल इन असेक्सुअल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉट पॉसिबल होता है किसका, जेनेटिक वेरिएशन का. ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है. और फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू अ ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन. अब हम लोग बात करेंगे व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय In this video, we will talk why the amount of DNA does not get double during sexual reproduction. The gamete are the special type of cells called reproductive cells which contain only half the amount of DNA are compared to the normal body cells of an organism. देखिए आगे ना हम लोग क्वेश्चन शुरू में ही वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक सिंगल पेरेंट क्यों नहीं खुद से ही, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी हाइड्रा हो गया, जैसे अमीबा हो गया, वो खुद सिंगल रहेंगे तो भी अपना अपने ही स्पीसीज के न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेंगे. बट इन ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं हम भी लोग अपने से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म सिंगल रह कर क्यों नहीं डेवलप कर लेते हैं, क्यों टू पेरेंट्स की आवश्यकता होती है. मेन रीज़न इज दैट बिकॉज ओनली अ ह्यूमन बीइंग और अ मेल और अ फीमेल that is the only 23 क्रोमोजोम्स. यानी कि एक नॉर्मल बॉडी में 23 क्रोमोजोम होते हैं. वो किस बॉडी में, सेक्स सेल के बॉडी में. यानी सेक्स सेल के अंदर बस 23 क्रोमोजोम ही होते हैं और हमें न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए कितने क्रोमोजोम चाहिए होते हैं, 46 क्रोमोजोम. इसलिए फ्रेंड्स एक पर्सन दूसरा व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकता, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू बेबी को जन्म नहीं दे सकता. उसे टू पेरेंट्स की आवश्यकता होती है. और ये टू पेरेंट्स कहाँ से मिलते हैं,
23 स्पर्म के पास होता है और 23 एग के पास होता है। 23 23 46 हो गए, और ये दोनों जब मीटिंग होते हैं तब ये न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है। अगर बात करें तो हम लोग के शरीर में 23 पेयर्स आते हैं क्रोमोजोम के, और 46 क्रोमोजोम होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल में होता है वह कैसे टेक्स प्लेस करता है। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला फिगर फ्रेंड्स, ये किसका है? ये बस एग और ये स्पर्म। और सेकेंड वाला फिगर ये एग और इसमें स्पर्म आके सट गया है, यानी इंटर हो गया है। और ये थर्ड वाला फिगर, इसमें दोनों आ गए हैं, यानी दोनों मीटिंग हो गया है दोनों का, यानी फ्यूजेशन यानी फर्टिलाइजेशन हो गया है थर्ड वाले फिगर में। देखिए ये स्पर्म होता है, इसके पास इसीलिए लॉन्ग टेल होती है क्योंकि इसे मूवमेंट करना होता है, इसलिए फ्रेंड्स इसके पास लॉन्ग टेल होती है। और जबकि एक के पास लॉन्ग टेल नहीं होता है, उसे मूवमेंट नहीं करना होता है। फ्रेंड्स अब बात करेंगे द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग्स and joining together of sperm and eggs to form a zygote, and then the growth of development of zygote to form a baby animal। अब हम लोग बात करेंगे पुबियर्टी। एक स्टेज होता है पुबियर्टी। पुबियर्टी का स्टेज क्या होता है? 13 साल से 19 साल के बीच कोई पुबियर्टी बोलते हैं, यानी 13 से स्टार्ट होता है, 13 साल से स्टार्ट होता है। हम लोग सिंपली यानी मदर लैंग्वेज में भी कहते हैं लड़का बड़ा हो गया है। देखिए पुबियर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। द एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स बिगन टू बी प्रोड्यूस्ड and the boy and girl become sexually mature able to reproduce is called puberty। puberty इसे ही कहते हैं जैसे कि उस एज को कहते हैं जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगता है, बनने लगता है, और बॉयज़ और गर्ल बिकम हो जाती हैं किसके लिए? सेक्सुअली मैच्योर के लिए, यानी एबल टू रिप्रोड्यूस अ सेम टाइप ऑफ न्यू स्पीसीज एंड प्रोड्यूस अ न्यू बेबी। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या होता है इनके पास और किस तरह से बेबी रिप्रोड्यूस करता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टी प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, एंड द ओवरी प्रोड्यूस 2 फीमेल सेक्स हार्मोन, first is estrogen and second progesterone। The sex hormone play an important role in the process of reproduction because they make the reproductive organ to mature and start functioning। Puberty is at which the reproductive organ reach maturity and secondary sexual characteristic develops। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स द वेरियस चेंजेस विच ऑकर्स इन बॉयज एट पुberty, यानी पुबर्टी के समय बॉयज़ में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या अंतर आते हैं, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखिए हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट एंड इन पुबिक रीजन, इसे क्या कहते हैं? जेनेटिकल रीजन एरिया बिटवीन द थाई के बीच में होता है। एयर आल्सो ग्रो ऑन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेसेस, जैसे कि दाढ़ी हो गया, मूंछ हो गया, बियर्ड मॉइस्चर। बॉडी बिकम मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, और इसके ऊपर मांस आते हैं मसल्स के बढ़ने के कारण। द वॉइस डिपेंड क्रैक, और आवाज़ बदल जाती है यानी फट जाती हैं। चेस्ट एंड शोल्डर ब्रोडन, चेस्ट और शोल्डर ब्रोडन हो जाता है। द पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज, पेनिस और टेस्टिस भी बड़ा हो जाता है। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म, और टेस्टिस होता है वो स्पर्म बनाने लगता है। फ्रेंड जो ये आपको पिक्चर दिख रहा है ये टीन एज का फिगर है, और ये टीन एज का है और ये चाइल्डहुड का है। यही तो डिफरेंस होता है टीन एज के बॉडी में, बॉयज़ के और फीमेल के बॉडी में टीन एज के समय और चाइल्डहुड के समय नो डिफरेंस। अब हम लोग बात करेंगे वेरियस चेंजेस विच ऑकर्स इन गर्ल्स एट पुबर्टी। फ्रेंड्स अब देखते हैं
hair grow under armpit and pubic region. This change in the is the same as in boy. Mammary gland breast, यानी मेमोरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट, डेवलप्स एंड इनलार्ज होता है, बढ़ता है. दिस द हिप्स ब्रोडन, extra fat is deposited in various part of the female body like hips and thighs. यानी हिप्स में और थाई में एक्स्ट्रा फैट होता है, वो डिपॉजिट होता है यानी मस्कुलर के फॉर्म में. फेलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस वेजिना इनलार्ज होते हैं. फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजिना लार्ज होता है. और फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुएशन यानी मंथली पीरियड्स स्टार्ट एंड feelings and sexually derives associated with adulthood begin to develop. All these changes in girls are brought about by the female sex hormones estrogen and progesterone made in ovary. और ये कहाँ बनता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओवरी में. अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. The reproductive systems in human being become functional at the definite age called puberty. यानी कि पुबर्टी के समय वह निश्चित एज होता है जिस समय रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग में काम करना शुरू कर देता है. और किस प्रकार काम करता है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में. तो बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है. देखिए, टेस्टिज एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स. मेल में टेस्टिज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ, इसके बारे में कैसे क्या बनता है और क्या होता है. देखिए, सबसे पहले ये फिगर है, ये पेनिस, ये स्क्रोटम, टेस्टिज, एपिडेडमिस, ये सब यूरिनरी ब्लैडर. अब देखिए कैसे क्या कहाँ से स्टार्ट होता है. ये टेस्टिज, ये जो ओवल शेप दिख रहा है ये टेस्टिज है. और टेस्टिज को कौन घेरा होता है, स्क्रोटम. इसको बोलते हैं स्क्रोटम. स्क्रोटम स्क्रोटम होता है ये. और टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, इपिडिडमिस. इपिडाइडमिस होता है, इपिडाइडमिस. स्क्रोटम के ऊपर होता है इपिडाइडमिस. इपिडाइडमिस से स्पर्म निकलता है और ये स्पर्म डक्ट के थ्रू ऐसे जाता है, यहाँ तक आता है बहुत स्लो. यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, इपिडिडमिस टू बिफोर सेमिनल वेसाइल द स्पर्म आर मूविंग वेरी फास्ट, स्लो और मीडियन. तो आंसर होगा मीडियन. और वेरी स्लो भी हो सकता है. जब सेमिनल वेसाइल और प्रोजेस्ट्रेट ग्लैंड के पास आता है तो ये जो ग्लैंड है वह सेमिनल वेसाइल और प्रोजेस्ट्रेन ग्लैंड, ये उसे क्या बनाते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिएंट. यही दोनों ग्लैंड प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को न्यूट्रिएंट. और यही फर्दर ट्रांसपोर्ट को ईजियर बनाते हैं. और यही दोनों आगे बढ़ने के लिए ईजियर बनाते हैं स्पर्म को, यानी सिल्की बनाते हैं स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए, वाटरी लिक्विड टाइप के फॉर्म में. और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में कि डज द duct of urine and sperm in human being or male is single or two duct. यानी कि जो स्पर्म और यूरिन को आउट होने का डक्ट होता है, यानी जो नली होती है, पाइप, वो एक होता है या दो. तो इन मेल there are only one pipe, and you can see in this video there is only single pipe through which urine and sperm come out. So but in female bodies it is not there. In female body there are two duct through which one duct is for urine comes out, and second is for birth canal, yani birth baby come out. So we will discuss later about female reproductive system. So first we will discuss about this type of reproductive system in males. अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है जो ये आपको ये स्क्रोटम दिख रहा है, यानी स्क्रोटम के नीचे टेस्टिज. ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का कि टेस्टिज क्यों
एब्डोमिनल कैविटी बॉडी के बाहर होता है। इसलिए वो बाहर होता है क्योंकि इसे 3 या 4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है फॉर फॉर्मेशन द स्पर्म। स्पर्म बनाने के लिए ये टेस्टिस को 3 और 4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, इसलिए टेस्टिस होता है वह बाहर होता है। अब सॉल्यूशन इसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? टेस्टिस आर द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी। व्हाई? द आंसर इज दैट द स्पर्म बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ lower temperature than the normal body temperature, that is 3 डिग्री सेल्सियस लोअर। हम लोग बात कर लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देखिए ये आपको दिख रहा है, ये है वेजिना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये वेजिना क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये सर्विक्स और ये यूटेरस और ये ओवरी, दोनों ओवरी और ये 2 ओविडक्ट और ये सब मस्कुलर थिंग्स हैं, मस्कुलर वेसल्स या मस्कुलर ट्यूबर। फ्रेंड्स अब इसके बारे में देखेंगे। ओवरी आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन वुमेन, यानी फीमेल में ओवरी है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सर्विक्स है इससे यूरिन आउट होता है, और जो वेजिना है ये वेजिना से बेबी बॉर्न होता है, यही है। और बट लेकिन मेल में ये चीज़ नहीं होता है, ये स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही डक्ट से आते हैं। बट इन फीमेल सर्विक्स से यूरिन आता है और वेजिना से बेबी बॉर्न होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में या टर्म्स के बारे में। वेजिना रिसीव्स द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म, यानी वेजिना रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है? पेनिस को। वेजिना पेनिस को रिसीव करता है। इन वेजिना रिसीव्स द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म इनटू the woman's body. Vagina is a tubular structure. Vagina is called birth canal because it is through this passage that the baby is born. Tubular, this passage that the baby is born after the completion of the development inside the uterus of the mothers. Please note करिए, in human being or female body, the opening for passaging out urine called urethra यानी cervix and the vaginal opening are separate, और जो ये वेजिना होता है ये सेपरेट होता है, यानी ये अलग होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। यूरिन बाहर होने से वेजिना से मतलब नहीं होता है। इससे वेजिना में क्या होता है? वेजिना से बेबी बॉर्न होते हैं और स्पर्म इन होता है, स्पर्म इससे जाता है और वेजिना से बाहर बेबी बर्न होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? हम लोग जानते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। तो फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड टुगेदर विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं, देखिए क्या होता है, किस प्रकार कैसे क्या होता है। ये ओवरी एग रिलीज करती है यहाँ पे ओविडक्ट में, और ये वेजिना के थ्रू स्पर्म आ रहे हैं, स्पर्म आता है, फिर इससे मीटिंग होता है यानी फर्टिलाइज्ड होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे टेक्स प्लेस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नोट करिए कि व्हाट इज द साइट और द प्लेटफॉर्म दैट विच द स्पर्म एंड द एग fertilized. The solution is that the site that is the oviduct. ओविडक्ट ये वैसा साइट है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड होता है एग। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अब देखेंगे हाउ एम्ब्रियो डेवलप्ड इन सेकेंड फिगर। देखिए ये फर्टिलाइज वहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज के बाद एम्ब्रियो में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो के बाद ये यूटेरस का थिक लिनिंग है, यहाँ पे आके इम्बीडिंग होता है। देखिए the embedding of embryo in the thick lining of the uterus is called implantation,
और जो यहाँ पे ये प्रोसेस है यहाँ से चल के यहाँ पे आके बैठने वाला, इसे ही कहा जाता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। सो फ्रेंड्स, अब देखिए मेन टॉपिक हम लोग का आ गया है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए ये जो फिगर देख रहा है ये किसका है? एम्ब्रियो का है। ये बड़ा सा क्या है? पिंक कलर का। ये यूटेरस, यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ये प्लेसेंटा, इसका नाम है प्लेसेंटा। ये है, ये जो दिख रहा है आपको ये सब प्लेसेंटा, जो कि यूटेरस, यूटेरस से जुड़ा होता है। एम्ब्रियो के माध्यम से यूटेरस से जुड़ा होता है। और प्लेसेंटा का क्या काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। यानी जो ये प्लेसेंटा है इसी के थ्रू न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट जो इस बेबी में बनता है वो बाहर होता है इसी से, प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा से देखिए एक अम्बिलिकल कोड जुड़ा हुआ है जो कि इस बेबी के नाभि से जुड़ा हुआ है, अम्बिलिकल कोड। ये जो आपको वाइट वाइट ये जो वाटरी लिक्विड दिख रहा है ना नीला कलर का, इसे ही बोलते हैं अमायोटिक लिक्विड। अमायोटिक लिक्विड का फंक्शन क्या होता है, यानी अमायोटिक लिक्विड क्यों इसे कहते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है? अमायोटिक लिक्विड से तो डॉक्टर चेक करते हैं, यानी कि बिफोर बर्थ के जो फीटस में बेबी पल रहा है। सो फ्रेंड्स, अमायोटिक लिक्विड से ही तो डॉक्टर चेकअप करते हैं कि जो फीटस में पल रहा है बेबी वो क्या है, गर्ल है या बॉय है। ये अमायोटिक लिक्विड से ही, ये सैंपल इसे बोलते हैं, इसी सैंपल से ही बेबी को चेक किया जाता है बिफोर बर्थ। देखिए ये बर्थ होने से कुछ वीक पहले का है। ये वेजिना के थ्रू अब आउट होने वाला है और ये बर्थ हुआ बेबी है, जस्ट बर्थ हुआ बेबी है। इसके नाभि से देखिए ये एम्बिलिकल कोड सटा हुआ है अभी तक। और ये एम्बिलिकल कोड जब बर्थ होता है तो ये एम्बिलिकल कोड आउट हो जाता है मदर्स बॉडी से और ये एम्बिलिकल कोड डेड होने लगता है और कुछ दिन बाद ये एम्बिलिकल कोड डेड होके ख़त्म हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द बॉर्न बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। यानी गेस्टेशन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जब एक फर्टिलाइज होता है तब से लेकर जब तक कि बेबी बॉर्न नहीं हो जाता तब तक के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस के बारे में। डिफरेंस आप लोग को चाहिए, मैं दे देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर। फ्रेंड्स देखिए ये डिफरेंस है जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में। जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और स्मॉलर देन फुल स्टॉप। ये जो आपको फुल स्टॉप दिख रहा है ना, इससे भी फर्स्ट स्टेज, ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट स्टेज एक फुल स्टॉप से भी छोटा होता है, समझ लीजिए। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फीटस में अच्छा से बेबी दिखने लगता है, एम्ब्रियो में हल्का हल्का उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और जाइगोट में अभी फॉर्मेशन ऑफ बेबी शुरुआत होता है बेबी का बनने का। देखिए फ्रेंड्स ये जाइगोट का, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस में डिफरेंस यही है तीनों में। जाइगोट कितना छोटा है और एम्ब्रियो में हल्का हल्का बॉडी दिखने लगता है और फीटस में पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स में, जो साइकिल चलता है यानी मेंसुरेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन मेंसुरेशन व्हाट इज द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओवल्यूशन। यानी कि जो रिलीज होता है एग्स, कहाँ से? ओवरी से एग रिलीज होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन। और बात करते हैं मेंसुरेशन। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें देखिए ये थिक लिनिंग है, जो पिंक कलर का, ये थिक लिनिंग ऑफ यूटेरस है, यानी सॉफ्ट होता है और थिक लिनिंग होता है। और यहाँ पे ये थिक लिनिंग इम्बीडिंग होता है, यानी ब्लीडिंग होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिक एंड सॉफ्ट लिनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood
blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstruation. Menstruation occurs every 28 days from the age of puberty. पुबियर्टी हमने पीछे पढ़ा, पुबियर्टी से लेकर हर 28 दिन पे या 30 दिन के बाद ये साइकिल चलता रहता है मेंसुरेशन का, और हर 28 दिन के बाद मेंसुरेशन आता रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या बेबी या जो फीमेल होती है वो कब प्रेग्नेंट हो सकती है, आफ्टर फॉर मेंसुरेशन या बिफोर मेंसुरेशन। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मेंसुरेशन साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। जो मेंसुरेशन साइकिल होता है ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो हार्मोन्स को आपको लोग पता ही है, वो हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन्स को कभी भूलिएगा मत। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी इसमें काम होता है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि माइंड में होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड माइंड के थोड़ा सा ऊपर होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मेंसुरेशन के पहले ही फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि व्हेन अ फीमेल प्रेग्नेंट, बिफोर मेंसुरेशन या आफ्टर मेंसुरेशन। दैट क्वेश्चन फॉर यू। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन ऑकर एवरी 28 डेज बिफोर ओवुलेशन, यानी जो ओवुलेशन होता है, रिलीजिंग ऑफ ओवम बाय ओवरी। मेंसुरेशन ऑकर्स बिफोर एवरी 28 डेज। क्योंकि मेंसुरेशन 28 दिन के बाद क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि हर 28 दिन के बाद ओवरी होती है वो जो एग रिलीज कर देती है, इसलिए। Menstruation usually occurs 14 days after ovulation and usually lasts for about 3 to 5 days, और 3 से 5 दिनों तक यह मेंसुरेशन होता रहता है। हाँ, और ये भी एक क्वेश्चन है, मेंसुरेशन स्टॉप्स टेम्पररी व्हेन द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड एंड द वुमेन गेट प्रेग्नेंट। यानी जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो मेंसुरेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। मेंसुरेशन रीस्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, और जो बर्थ हो जाता है बेबी का आफ्टर 36 वीक्स, देन द मेंसुरेशन विल बी रीस्टार्ट। अब हम लोग बात करेंगे मिनार्क और मोनोपास क्या होता है। मिनार्क और मोनोपास किसे कहते हैं? द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेंसुरेशन एट द पुबर्टी एज इज कॉल्ड मिनार्क, यानी कि ये 12 साल की अवस्था में मिनार्क आता है। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? मिनार्क। और मेनोपॉज किसे बोलते हैं? द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंसुरेशन इन अ वुमेन इज कॉल्ड मेनोपाज। इट इज़ अबाउट 45 ईयर्स और 50 ईयर्स, यानी ये 45 साल पे होता है और ये 12 साल पे। फर्स्ट मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं? मिनार्क, और लास्ट को मेनोपाज। अब हम लोग बात करेंगे बर्थ कंट्रोल। बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए। भारत में अब तक की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो इसे कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स बर्थ कंट्रोल। हाउ डू वी कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स बर्थ कंट्रोल मेथड, these are four or five topics. These 5 topics we will discuss in the next video, because this video is becoming too long, so I cannot want to this type of working. So we will discuss in next video how do we control birth control methods, and what is the contraception device and what is the chemical device. So I hope you all are understanding and you all are learned very well thing by very well method. Please like and subscribe this channel. Don't forget. Till then, thank you and have a nice day. Again we will meet. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.